Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are well, fit and healthy. So student, take out your book, open page number 13. I am teaching you chapter number 13, that is the story of a wheel. Open page number 68 and take a rough copy also and one pencil so that you can note down the important points from the board also, and if there is any confusion you can note down in your book or in your rough copy and you can ask with your teacher in online doubt session. Is it clear? So before starting, let recapitulate what we have done in our previous video. Okay student, so see student, open page number 66. So in previous video we start the discussion of a we start the chapter with the discussion of the wheel. How the question arises, where you see the wheel? A very simple thing that student, when you come to school you come with different modes of transport. Maybe by bus you come to school, some of them are coming with the motorcycle, scooter, scooty or car, van. So what is the common thing student we see? That all the things are moving on the wheel. All the things are moving on the wheel. Whether the size of the wheel is different, it doesn't matter. Common thing which we find in that all the things are moving on wheel. Now after that we discuss that how, who invented the wheel, how the early man make the first wheel, that we are discussing in this chapter. So student, in the beginning time, I am talking about many years ago, when human beings move from one place to another in search of food and shelter. Okay, then how he moved? He moved on his legs from one place to another. After that student, in search of food and shelter, so that he is safe from the climate also. And but when the with the pass of the time, what's happened? The early man now he that know how to, when the early man learn how to tame the animals, because in the beginning he moved from one place to another in search of food and shelter. But when the human beings come to know or they learn how to tame the animals मतलब उन्हें ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को अपने कंट्रोल में करना आ गया, वश में करना आ गया. तो उसने कुछ एनिमल्स को, जिससे उससे कोई डेंजरस नहीं था, खतरा नहीं था, उसने उन कुछ एनिमल्स को अपने साथ रखना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. एंड आफ्टर दैट इन द बिगनिंग एनीथिंग दे आर कैरिंग ऑन द बैक्स. ठीक है, अपनी पीठ के ऊपर ही सारी चीजें एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते थे अर्ली मैन्स. बट नाउ व्हेन दे लर्न हाउ टू टेम द एनिमल्स, now what they are doing, they are using these animals for carrying heavy loads. ठीक है, for carrying heavy loads they are start using these animals. Okay, so these things the early man do. Now after that, in this chapter we will study how early humans, how the invention of the wheel, हाउ व्हील इज इन्वेंटेड. मतलब जो ये पहिया है इसका इन्वेंशन कैसे किया अर्ली मैन ने. सो एट दैट टाइम स्टूडेंट, what the human beings are doing, what they are learning,
दे आर लर्निंग बाय डूइंग और ऑब्जर्विंग द थिंग्स. ठीक है. अर्ली ह्यूमन बींग्स ने ऑब्जर्व किया. व्हाट दे ऑब्जर्व? दे ऑब्जर्व दैट द थिंग्स विच आर राउंड इन शेप दे कैन मूव इजिली ऑन द ग्राउंड. ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर सराउंडिंग वेयर दे आर लिविंग. ठीक है. उनके सराउंडिंग में बहुत सी थिंग्स थी जहां वो रहते थे. तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की. ठीक है. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? दे ऑब्जर्व दैट द राउंड थिंग्स कैन मूव easily on ground. What they observed? They observed that the round things can move easily on ground. उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि राउंड चीजें हैं वो ग्राउंड पे अगर हल्का से पुश किया, ये सब चीजें उन्होंने सीखी. ठीक है. नो वन टीच देम. देयर इज ए नो बुक that they read in the book and then they apply the knowledge. Okay, they learn the things by doing. ठीक है. तो what they have observed? They have observed that round things can move easily on the ground. उन्हें लगा कि जो round, जैसे आप पिक्चर में भी देखोगे. Now see in this picture, this human being is observing. These are logs of the wood. ठीक है. He is observing that they can roll very easily. Okay. So now student, what they observe that the round things can move easily on ground. जो round things है उन्हें जरा सा भी पुश लगाते हैं. Why not applying much force? मतलब ज्यादा ताकत. फोर्स मतलब होता है ताकत. उन्होंने ये देखा जो चीजें राउंड नहीं है, फ्लैट हैं और अदर शेप्स की हैं, उन्हें हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, देन ओनली वी कैन मूव द थिंग्स. बट अगर राउंड ऑब्जेक्ट पे लेस फोर्स भी लगाते हैं तो वो ग्राउंड में क्या है, मूव होने लगती है. सो स्टूडेंट, फ्रॉम हियर व्हाट हैपन? I show this picture also. See this picture. Now come to page number 69. He realized that it was easy to roll round things along the ground. So what the early human beings ने क्या रियलाइज किया कि जो राउंड थिंग्स हैं वो ग्राउंड में इजिली रोल कर रही हैं. इजी टू रोल. ठीक है. राउंड थिंग्स अलोंग द ग्राउंड. ठीक. उसने ये ऑब्जर्व किया. नाउ लेटर परहैप्स व्हाट ही हैज डन. अब देखो उस समय क्या ट्रीज थे, बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं उनके जो तने होते हैं. ठीक है. उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रंक होता है. ट्रंक बोलते हैं. इज इट क्लियर? वी से इट एज ए ट्रंक. सो यू सी द ट्रंक ऑफ द ट्रीज आर राउंड शेप. Its shape is round. ठीक है. The shape is round. उन्होंने देखा. What they observe? पहले तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो राउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इजिली मूव करते हैं ग्राउंड पे, रोल करते हैं, गोल गोल करके रोल करके चले जाते हैं ना. सो उन्होंने देखा. अब उन्होंने सराउंडिंग्स में देखा कि राउंड ऑब्जेक्ट में क्या चीजें हैं. तो दे फाइंड द ट्रंक ऑफ द ट्रीज. क्योंकि पेड़ जो होते हैं बेटा, उनके जो ट्रंक होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं. व्हाट इज द शेप ऑफ द ट्रंक ऑफ द ट्रीज? दैट इज राउंड शेप. नाउ व्हाट द अर्ली ह्यूमन बींग्स, व्हाट दे हैव डन? सो लॉग्स ऑफ ए वुड, ये तो बहुत बड़े बड़े थे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लॉग ऑफ ए वुड. सो now what they do, they cut. for example ये क्या है? log है wood का. ठीक. is it clear? now what they do, it is written slice. is it clear? so now what they do, they cut it. They cut the
trunk of the trees, and the shape of the trunk is round. They cut, and the shape is round. It is given here. Later perhaps he sliced a tree trunk, made holes and used them as the first wheel. He must have connected two round trunks with a stick on which he put a cart. He was now able to carry things more easily. So what they observed? They observed that the round things can move easily on ground. So they see the trunk of the trees. उन्होंने क्या देखा? जो ट्री के ट्रंक थे, अब उन्हें राउंड चीज बनाने नहीं आती थी उस समय, ठीक है, तो ये भी उन्होंने ऑब्जर्व ही किया होगा कि राउंड चीज जो है वो इजिली मूव करती है ग्राउंड पे। तो अब उन्होंने अपने सराउंडिंग्स में देखा होगा कौन चीज राउंड है, तो उन्हें देखा कि द ट्रंक ऑफ द ट्री इज राउंड शेप, द ट्रंक ऑफ द ट्री इज राउंड शेप। नाउ व्हाट दे डू? दे कट द ट्रंक ऑफ द ट्रीज, ठीक है। सो व्हेन दे कट द ट्रंक ऑफ द ट्रीज, तो मे बी is it clear? If you cut the round shape of the trunk is round, and if you cut the pieces it will come in this manner. Round shape. In this manner they cut the trunk of the trees, and now what they do? Now what they do? They make holes. They make holes in the center of the trunk. ठीक है? What they make? They make holes in the center of the trunk, because अब उन्हें ये पता चल गया था कि जो फ्लैट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उनमें बहुत फोर्स अप्लाई करनी होती है, वो रोल नहीं कर सकते। रोल करना समझते हो ना, गोल गोल चलना, मूवमेंट जो होती है, जैसे आप द साइकिल है, व्हील है, व्हेन यू पैडल इट मूव्स। सो व्हाट दे डू नाउ? अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि राउंड ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत अच्छा रोल करते हैं ग्राउंड में, ठीक है, बाई अप्लाइंग लेस फोर्स, मतलब कम ताकत लगाते हैं तो भी ये क्या है, बहुत अच्छे से ग्राउंड पे क्या मूव करते हैं। सो नाउ व्हाट दे डू? दे स्लाइस, उन्होंने कट किया ट्रंक्स को, एंड दे गेट दिस टाइप ऑफ ए शेप। ट्रीज के ट्रंक को कट किया तो दे गेट दिस टाइप ऑफ ए शेप। नाउ आफ्टर दैट व्हाट दे डू? दे गेट दिस टाइप ऑफ ए शेप। ऐसी उन्होंने व्हील स्टार्टिंग में मिली, अब इनका मूवमेंट कराना था। सो व्हाट दे डू? दैट बोथ द व्हील्स मूव टुगेदर। इज इट क्लियर? सो दे डू होल्स, उन्होंने क्या किया, इसमें होल्स किए। क्या कर दिया? होल्स कर दिए। एंड आफ्टर दैट दे पुट वन स्टिक बिटवीन दिस होल, सो दैट बोथ द व्हील्स कैन मूव। आ रहा है समझ में बेटा आपको? ठीक है, ये ट्रंक काटे, ये राउंड शेप निकले, ठीक है, इनका शेप क्या निकला? राउंड निकला, एग्जैक्ट। ओके, सो नाउ व्हाट दे डू? दे मेक होल्स बिटवीन दिस ट्रंक, इस ट्रंक के बीच में उन्होंने क्या कर दिए? होल्स कर दिए, ठीक है, होल्स कर दिए। और अब इन व्हील्स को कैसे ज्वाइन किया? होल्स करने के बाद इन दोनों होल्स के बीच में उन्होंने क्या लगा दी? बहुत मजबूत स्टिक लगा दी, ठीक है, स्टिक कह सकते हो, या तो हाँ देखो देयर आर मेनी, या तो बैम्बू लगाया होगा, ठीक है। सो दैट दी टू ज्वाइन दिस व्हील, इन दिस मैनर दे मेक द फर्स्ट कार, ठीक है। सी इन दिस द पिक्चर आल्सो, सी in the picture it is shown, they cut the trunk of the tree,
and they get this type of a round shape. This type of a round shape they get, and after that they put one strong stick between this, what, between this wheel. Okay, now this is the way they make the first, on which he put a cart. और जो ये उन्होंने एक गाड़ी टाइप की बनाई ना जिसमें व्हील्स लगाए, इसे क्या बोलते हैं, कार्ट बोलते हैं. इज इट क्लियर? इस तरह अर्ली ह्यूमन बींग्स ने फर्स्ट टाइम जो एक कार्ट बनाई, और कैसे बनाई, ही स्लाइस अ ट्री ट्रंक. ठीक है, ये देखो मैंने दिखाया, उसने इसे काटा, ट्री के ट्रंक को काटा. देन दे गेट दिस टाइप ऑफ ए राउंड शेप ट्रंक. So after that, for the movement, what they do, they make holes between the trunk. ट्रंक के बीच में क्या किए उन्होंने, होल्स कर दिए. फिर बेटा आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, they must have connected two round trunks with a stick on which he put a cart. ठीक है, उन्होंने इन दोनों व्हील्स को करने के लिए सेंटर से ने कट किया, होल्स बनाया, एंड इन दिस होल्स दे अप्लाई अ स्टिक, एक स्ट्रॉन्ग स्टिक अप्लाई कर दी. सो ऑन विच ही पुट अ कार्ट. और उसके बाद देखो उन्होंने पहली मूवमेंट वाला जो पहले जो बनाई उन्होंने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो फर्स्ट बनाई, दैट इज ए कार्ट, और दिस इज मेड ऑफ द वुड. इसकी व्हील्स भी वुड की थी. इज इट क्लियर? इसकी व्हील्स भी वुड की है, और दे यूज द ट्रंक ऑफ द ट्रीज टू मेक दिस कार्ट. इज इट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इज मेड बाय द अर्ली ह्यूमन बींग्स. अर्ली ह्यूमन बींग्स ने फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इस तरह बनाई थी. ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया, लेट डू द रिकैप्चुलेशन. अब इसकी रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं. ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ सिंपल वे. हमने आपको क्या बताया कि अर्ली ह्यूमन बींग्स ने ऑब्जर्व किया. आई ऑलरेडी शो इन यू द पिक्चर आल्सो. देखो उसके सराउंडिंग्स में बहुत सी चीजें थी. ठीक है, एंड देयर इज नो बुक टू स्टडी एंड गेट द नॉलेज. तो दे आर लर्निंग बाय डूइंग. So what's happened, they observe that in their surroundings which things are round in shape. जो things round shape की थी उनकी मूवमेंट ग्राउंड पे बहुत इजीली हो जा रही थी. ठीक है, तो उन्होंने उस समय ये सोचा होगा कि राउंड ऑब्जेक्ट बहुत आसानी से मूव कर सकता है. देखिए पहले वो लोग क्या करते थे, दे वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. विद द पास ऑफ टाइम व्हाट्स हैपन, स्लोली उन लोग को क्या, एनिमल्स को, क्योंकि ह्यूमन बींग्स भी क्या रहते थे, फॉरेस्ट में रहते थे, दे आर अफ्रेड ऑफ द एनिमल्स. इज इट क्लियर? दे आर अफ्रेड ऑफ द एनिमल्स. बट आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन्स, दे लर्न हाउ टू टेम द एनिमल्स. कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिन्हें उन्हें कंट्रोल में करना आ गया, तो अब उसकी लाइफ और बेटर हो गई. They are getting food from that animals also. They are using that animals in cultivation also. Is it clear? And even they start using these animals for carrying the heavy loads also. ठीक है, अब now further after few times अब क्या हुआ, पहले वॉक करते थे, फिर एनिमल्स टेम करने आ गए. दे स्टार्ट यूजिंग these animals in cultivation also and even carrying heavy loads and moving from one place to another. ये भी आ गया उन लोग को. And even they start moving by sitting on the back of these animals also. इन एनिमल्स के बैक पे भी बैठ के वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे. ठीक है, बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, अर्ली मैन ने ये ऑब्जर्व किया द थिंग्स विच आर राउंड इन शेप. जो उसको अपनी सराउंडिंग्स में थिंग्स होंगी उनमें उसने ऐसा ऑब्जर्व किया, या कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई चीज राउंड होगी. ठीक है, द थिंग्स विच इज राउंड इन शेप वो कहीं स्लोप से बहुत तेजी से आई होगी, तो उसने उस चीज को देखा होगा कि जो राउंड ऑब्जेक्ट होता है वो प्लेन सरफेस से बड़ी तेज रोल करके चलता है इजिली. सो उसके दिमाग में हो सकता है आइडिया आया होगा
कि राउंड ऑब्जेक्ट मैं क्या लूं। बहुत से स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों पे आप लोग देखे होंगे, वो भी राउंड शेप के भी होते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, या तो उन्होंने कोई राउंड शेप में आप ले सकते हो, या तो कोई फ्रूट देखा होगा, fruit which they are eating in the forest, the shape of the fruit is round, मे बी उन्होंने उसे ग्राउंड में थ्रो किया हो एंड दे सी दैट द राउंड ऑब्जेक्ट मूव वेरी इजिली ऑन द ग्राउंड, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कोई फ्रूट जब वो खाने से पहले या उनके हाथ से गिर गया हो फ्रूट, और वो इट कवर सम डिस्टेंस, तब उनके दिमाग में ये स्ट्राइक किया हो कि जो राउंड ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, अगर बाई चांस दैट ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द ग्राउंड, वो मूव नहीं करते हैं, ठीक है। हो सकता है दे आर ईटिंग सम फ्रूट और सम शेप, फ्रूट्स की शेप मैक्सिमम राउंड ही होती है मैक्सिमम। सो हो सकता है तब उनके दिमाग में ये आइडिया आया हो कि द थिंग्स विच इज राउंड इन शेप दे कैन मूव इजिली ऑन द ग्राउंड, ठीक है। कुछ भी ऐसा उनके दिमाग में उस समय आया, तो उन्होंने देखा कि राउंड ऑब्जेक्ट, राउंड वाली चीज उन्हें मिलेगी कहाँ। देन दिस मे बी ऑब्जर्व उन्हें किया होगा कि जितने भी ट्रीज होते हैं, इनके ट्रंक्स जो होते हैं, ये क्या शेप के होते हैं, राउंड शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं, राउंड शेप के। जैसे देखो अर्ली ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स को भी, अर्ली ह्यूमन बींग्स फ्रूट्स खाता था, इवन इट किल एनिमल्स आल्सो। तो एनिमल्स को किल करने के लिए, भाई एनिमल्स को किल करने व्हाट दे डू, उन्होंने स्टोन्स, दे यूज स्टोन स्टिक्स, ये सब चीजें वो यूज करता था एनिमल्स को मारने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह उसको जब ये हुआ तो उसको राउंड ऑब्जेक्ट का आया, उसे आइडिया आया होगा कि ऑल द ट्रीज आर राउंड इन शेप, सो राउंड ऑब्जेक्ट मूव एंड रोल ऑन द ग्राउंड वेरी इजिली। तो मे बी उनके दिमाग में आइडिया आया होगा, क्यों ना किसी कोई पेड़ गिर गया हो, या तो ऐसा हो सकता है कभी बहुत तेज हवा चली हो, कोई पेड़ गिर गया, अब पेड़ की शेप क्या थी, उसके ट्रंक की राउंड शेप थी, तब हो सकता है उनको आइडिया आया हो कि लेट कट द ट्रंक। सो आफ्टर कटिंग द ट्रंक दे मे बी दे गेट दिस टाइप ऑफ ए शेप, उनको ऐसी शेप मिली होगी राउंड राउंड। और हो सकता है उसको उन्होंने पुश करके देखा होगा कि when they push that, if you cut the trunk of a tree you will get this round shape, and when they push this round shape on the ground it can move very easily। तब मे बी हो सकता है उनके दिमाग में आया होगा कि अब ऐसी राउंड शेप मैंने इस ट्री को काट के 4-5 कर ली, तो अब ये हाउ दीज 2 व्हील्स और 4 व्हील्स हाउ दे कैन मूव टुगेदर, अब ये मूव कैसे टुगेदर करेंगी। तो मे बी उनको ये आइडिया आया होगा कि ऐसा करते हैं कि वी मेक ए होल इन द ट्रंक ऑफ द ट्रीज। ओके, सो आइडिया क्या था कि चलो होल कर देते हैं। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस, होल करने के बाद उन्होंने क्या किया कि अब देखो जैसे किसी चीज की मूवमेंट करानी, उन्हें पहले समय में वो क्या यूज करते थे, दे आर यूजिंग एनिमल्स फॉर कैरिंग देयर लोड्स, यही ना मैंने बताया, दे आर यूजिंग एनिमल्स फॉर कैरिंग देयर लोड। अब मे बी वन व्हील, एक ट्रंक काटी, ऐसे व्हील्स आए, तो अब इतनी सी व्हील्स में या तो इतनी बड़ी ट्रंक को तो वो लोग राउंड राउंड नहीं ना चला सकते, उसके लिए तो बहुत ज्यादा पावर चाहिए, बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए। तो मे बी तब उनके दिमाग में आया होगा कि ये ठीक है, द शेप ऑफ द ट्रंक इज राउंड बट इट इज वेरी बिग, इट इज वेरी बिग, इट इज नॉट पॉसिबल टू पुश सच अ बिग राउंड शेप। तब उसके उनके दिमाग में आया हो कि क्यों ऐसा करते हैं, इन्हें कट कर लेते हैं, लेट कट द राउंड शेप ट्रंक ऑफ द ट्री। तब उनके दिमाग में आया होगा, क्योंकि बाई चांस हो सकता है कभी आंधी आई हो, पेड़ गिर गया, अब उनको इतना बड़ा पेड़ गिरा, अगर उसको पुश कर रहे होंगे तो वो मूव नहीं कर रहा होगा, बहुत वेट होता है ना। तो मे बी उनको आइडिया आया होगा क्यों ना इसे कट करके स्मॉल पीसीस कर लें, तो मे बी उन्होंने इसे कट किया होगा और दे गेट दिस टाइप ऑफ ए राउंड शेप। अब उन्हें अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना था, ठीक है। तो मे बी अब उनको लगा होगा कि हाउ द 2 व्हील्स मूव टुगेदर, कैसे 2 व्हील मूव्स टुगेदर हो सकती हैं। सो दे मेक होल्स इन द ट्रंक
ऑफ द ट्रीज के बीच में होल्स कर दिए एंड अब वो उन्हें ये सोचा होगा दे थिंक हाउ व्हाट वी विल डू सो दैट द टू व्हील्स और फोर व्हील्स कनेक्ट टूगेदर, दो सब आपस में कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो मे बी उन्होंने ऐसे किया होगा, बाई चांस हैंड में किया होगा। एंड हाउ वी कनेक्ट दिस, टू व्हील्स है नाउ, हाउ वी कनेक्ट दिस टू व्हील्स। तो मे बी आइडिया हैज कम टू देयर माउंट इफ दे मेक अ होल in this tree trunk and put some strong stick in this, then these two trunk round shaped trunk will connect with each other. So in this manner they make the first cart. ठीक है, इस तरह उन्होंने फर्स्ट कार्ट का बनाई थी और इन दिस मैनर दे इन्वेंटेड व्हील। इन दिस मैनर द अर्ली मैन इन्वेंटेड द व्हील। ठीक है, आई होप नाउ दिस इज यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस हाउ द अर्ली मैन इन्वेंटेड द व्हील। मतलब अर्ली मैन ने कैसे व्हील पहिए की खोज कैसे की, फर्स्ट टाइम ये जो राउंड शेप जो व्हील है वो कैसे बनाई। तो वो किससे बनाई थी, उन्होंने वुड से बनाई थी। एंड दे टेक व्हाट, दे टेक द ट्रंक ऑफ अ ट्री, क्योंकि जो बड़े टॉल ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। और उनके जो जैसे छोटे प्लांट्स के जो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं, स्टेम ऑफ द। लेकिन जो टॉल ट्रीज होते हैं उनके स्टेम नहीं बोलते, उसे हम बोलते हैं ट्रंक। उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। ठीक है, TRUNK। सो इन दिस मैनर आइडियाज आर कमिंग इन देयर माइंड एंड दे with the help of this wheel they make the first cart for carrying load from one place to another. Now next देखते हैं। So the invention of the wheel had a great effect on humans. As time passed, humans improved the wheel they had discovered. Today vehicles can be fitted with different types and sizes of wheels made of wood, steel, rubber, etc. So what happens, student, the invention of the wheel, this has totally changed the life of a human being. ठीक है, invention of wheel has totally changed the life of a human beings. और if you talking about the present time, ठीक है, ये जो व्हील का इन्वेंशन अर्ली मैन ने किया, इसने हम ह्यूमन बींग्स की लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ा। वे ऑफ लिविंग जो हमारी बहुत चेंज हो गई। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम, सो वी सी स्टूडेंट डिफरेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए व्हील्स, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की व्हील्स इन प्रेजेंट टाइम में आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, टायर्स आर मेड ऑफ ए रबर और स्टील आल्सो, बिकॉज रेलवेज देखा ना, ट्रेन के जो होते हैं ये रबड़ वाले टायर नहीं होते हैं, क्योंकि उसका इतना ज्यादा वेट होता है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो वो आई स्टील यूज किया जाता है ना उन्हें बनाने के लिए, उनके व्हील्स को बनाने के लिए स्टील का यूज करते हैं ना बेटा। सो आज प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे यू विल सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए व्हील्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए मोड्स ऑफ ए ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आज तो बहुत से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं और आपको अलग अलग तरह की और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की व्हील्स देखने को मिलती है। सो स्टूडेंट, today I explained you the story of a wheel, how the early man invented the wheel. Okay, so I hope you all are able to understand. Ab now can you, there is a very good question for you, can you name any 6 things around you which have wheels? So this is a homework for you. ठीक है, so you have to write the name of any 6 things around you which have wheels. ठीक है, कोई भी 6 things के नाम लिखने हैं अपने अगल बगल जिनमें व्हील्स हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, तो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर इज दैट चिल्ड्रन मस्ट अंडरस्टैंड हाउ ए व्हील वाज इन्वेंटेड। सो आई थिंक all of you are able to understand how a wheel was invented. That is, I think
is very clear to all of you. Now the uses of wheels. So in the uses of wheel, these wheels are used in different types of a modes of a transport. Okay, thank you student.